জীবন পৃথিবীর দুঃখকে ঘোচাতে। উজাড় করে তুমি দিয়েছ জীবন পৃথিবীর দুঃখকে ঘোচাতে। এমনও প্রেম যে তুমি দিলে গো আমায়, তার কাছে আমি যে নগণ্য। এমনও প্রেম যে তুমি দিলে গো আমায়, তার কাছে আমি যে নগণ্য। তোমার দানে হয়েছি আমি যে ধন্য। আমার জীবন শুধু তোমারই জন্য। ভালোবাসা তুমি ভরে দাও, তোমার কাছে টেনে নাও। ভালোবাসা তুমি ভরে দাও, তোমার কাছে টেনে নাও। তোমাতে আমি থাকবো বিভোর, তোমাতে আমি থাকবো বিভোর। চাই না তো আর কিছু অন্য, চাই না তো আর কিছু অন্য। তোমার দানে হয়েছি আমি যে ধন্য। আমার জীবন শুধু তোমারই জন্য। তোমার দানে হয়েছি আমি যে ধন্য। আমার জীবন শুধু তোমারই জন্য। প্রাণে প্রাণে দুটি কথা কও, অভয় বাণীটি দিয়ে যাও। প্রাণে প্রাণে দুটি কথা কও, অভয় বাণীটি দিয়ে যাও। জীবন শেষে তোমারই পাশে, জীবন শেষে তোমারই পাশে। হই যেন আমি প্রভু গণ্য, হই যেন আমি প্রভু গণ্য। তোমার দানে হয়েছি আমি যে ধন্য। আমার জীবন শুধু তোমারই জন্য। আমার জীবন শুধু তোমারই জন্য। হালেলুয়া। সত্যি প্রভুর দানেই আমরা ধন্য হয়েছি। আমাদের এই জীবন শুধু প্রভুরই জন্য। হালেলুয়া। এবারের গান, প্রভু দাও সেই বর জীবনে আমার তোমার চরণ ধরিতে। প্রভু দাও সেই বর জীবনে আমার তোমার চরণ ধরিতে। সে হৃদয় দাও যে হৃদয় পায় তোমার ডাক শুনতে। প্রভু দাও সেই বর জীবনে আমার তোমার চরণ ধরিতে। সে হৃদয় দাও যে হৃদয় পায় তোমার ডাক শুনতে। পিতরে দিলে ক্ষমা সুফল, সমরি নারী পেল অমৃত জল। শিশুদের দিলে অফুরান স্নেহ, শুধু আমি কি পাবো না চাহিতে। পিতরে দিলে ক্ষমা সুফল, সমরি নারী পেল অমৃত জল।
রবি শশী তারা হবে জ্যোতি হারা, তব প্রেমে রহিবে। তব প্রেম ধারা চির বহমা, সে ধারা নাহি ফুরাবে। রবি শশী তারা হবে জ্যোতি হারা, তব প্রেমে রহিবে। প্রভু দাও সেই জীবনে আমার, তোমার চরণ ধরিতে। সে হৃদয় দাও যে হৃদয় পায় তোমার ডাক শুনতে। প্রভু দাও সেই লাসারে দিয়েছ নব জীবন, দস্যু পেয়েছে প্রত্যাশা ধাও। লাসারে দিয়েছ নব জীবন, দস্যু পেয়েছে প্রত্যাশা ধাও। এলো সক্রিয় প্রাণের আনন্দ, শুধু আমি কি পাবো না কিছুতে। এলো সক্রিয় প্রাণের আনন্দ, শুধু আমি কি পাবো না কিছুতে। প্রভু দাও সেই জীবনে আমার, তোমার চরণ ধরিতে। প্রভু দাও সেই জীবনে আমার, তোমার চরণ ধরিতে। হালেলুয়া। হ্যাঁ পিতা, সেই বর তুমি আমাদের দাও প্রভু, যেন তোমার চরণ ধরতে পারি প্রভু গো। তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো পিতা। যিশুই মুক্তিদাতা, পাপীর পরিত্রাতা, দুঃখের এই ভুবনে তিনি শান্তিদাতা। যিশুই মুক্তিদাতা, পাপীর পরিত্রাতা, দুঃখের এই ভুবনে তিনি শান্তিদাতা। তাকে বরণ করে না, তারে জীবন সঁপে দাও। তব হৃদয় মাঝারে তাকে আসন দিয়ে দাও। যিশুই মুক্তিদাতা, পাপীর পরিত্রাতা, দুঃখের এই ভুবনে তিনি শান্তিদাতা। যিশুই মুক্তিদাতা, পাপীর পরিত্রাতা, দুঃখের এই ভুবনে তিনি শান্তিদাতা। অন্ধকারের বাধা সব দূরে যাবে সরে। অন্ধকারের বাধা সব দূরে যাবে সরে। শয়তানের বাঁধন ছিঁড়ে যাবে এক নিমেষে। শয়তানের বাঁধন ছিঁড়ে যাবে এক নিমেষে। তাই সবে মিলে গায় তার স্তুতি জয় গাও। তাই সবে মিলে গায় তার স্তুতি জয় গাও। যিশুই মুক্তি
মঙ্গল দীপি জেলে অন্ধকারে দু চোখ আলোয় ভর প্রভু, তবু যারা বিশ্বাস করে না তুমি আছো তাদের মার্জনা করো প্রভু। মঙ্গল দীপি জেলে অন্ধকারে দু চোখ আলোয় বড় প্রভু, তবু যারা বিশ্বাস করে না তুমি আছো তাদের মার্জনা করো প্রভু। যে তুমি আলো দিতে প্রতিদিন সূর্য ওঠা, ওদের বুঝিয়ে দাও সেই তুমি পাথরে ও ফুল যে ফোটা। যে তুমি আলো দিতে প্রতিদিন সূর্য ওঠা, ওদের বুঝিয়ে দাও সেই তুমি পাথরে ও ফুল যে ফোটা। জীবন মরুতে করুণা ধারায় ঝড়ো প্রভু। মঙ্গল দীপি জেলে অন্ধকারে দু চোখ আলোয় ভর প্রভু, তবু যারা বিশ্বাস করে না তুমি আছো তাদের মার্জনা করো প্রভু। বলো তার কি অপরাধ, জন্ম হয়েছে যার পাপে, তোমারও ক্ষমা দিয়ে তুমি ওটাও পথ করে থাকে। ভুল পথে গেলে তুমি এসে হাত ধরো প্রভু। মঙ্গল দীপি জেলে অন্ধকারে দু চোখ আলোয় ভর প্রভু, তবু যারা বিশ্বাস করে না তুমি আছো তাদের মার্জনা করো প্রভু। মঙ্গল দীপি জেলে অন্ধকারে দু চোখ আলোয় ভর প্রভু, তবু যারা বিশ্বাস করে না তুমি আছো তাদের মার্জনা করো প্রভু। হালেলুয়া। ধন্যবাদ প্রভু। হে প্রভু, যারা তোমায় বিশ্বাস করে না পিতা তাদের তুমি মার্জনা করো প্রভু গো, তুমি আশীর্বাদ করো পিতা। এবারে নেপালি গীত গাইবো। আমি কোনোদিন গাইনি, কিন্তু আজকে আমি গাইবো, আমার ইচ্ছা আজকে একটা নেপালি গীত গাই। परमेश्वर को चोखो बेदी
चढ़ाओ छुइयो मेरो जीवनलाई परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाओ छुइयो मेरो जीवनलाई मेरो सारा हृदयले मेरो सारा हृदयले प्रभु तपाईँलाई महिमा हो। प्रभु तपाईँलाई महिमा हो। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाओ छुइयो मेरो जीवनलाई परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाओ छुइयो मेरो जीवनलाई पूजा छु धन्यवादको भेटिदिनुलाई पूजा मेरो दुई हात धन्यवादको भेटिदिनुलाई मेरो सहारा यीशु तपाईँ मेरो सहारा यीशु तपाईँ प्रभु तपाईँलाई महिमा हो। प्रभु तपाईँलाई महिमा हो। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाओ छुइयो मेरो जीवनलाई परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाओ छुइयो
सेनायुका यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने ये पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने ये पृथ्वी बनाई, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्केऊ को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्केऊ को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार को निकाला, समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार को निकाला, वायदा वो करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। वायदा वो करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। সেনাও কা ইহোবা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে। ইয়াকুব কা পরমেশ্বর, তিনি আমাদের উঁচা গড় হে। হালেলুয়া। দেখো প্রিয় যিশু, আমি তোমায় ছাড়া বাঁচতে পারবো না। আমার পাশে তুমি থেকো প্রিয় যিশু, আমি তোমায় ছাড়া বাঁচতে পারবো না। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া,
আশীর্বাদ করো পিতা। প্রভু গো, তুমি আমাদের সঙ্গে থেকো প্রভু গো। হালেলুয়া। সদা প্রভু জীবনের পালক আমার, তুমি প্রভু আধারের আলো আমার, তাই গাই জয়গান তোমারি নামে, তাই গাই জয়গান তোমারি নামে। সদা প্রভু জীবনের পালক আমার, তুমি প্রভু আধারের আলো আমার, তাই গাই জয়গান তোমারি নামে, তাই গাই জয়গান তোমারি নামে। আজকে আমার এই জীবন গাথা তুমি করো প্রভু মুক্তির দান। আজকে আমার এই জীবন গাথা তুমি করো প্রভু মুক্তির দান। আমার প্রণাম নাও গো প্রভু, রাখো আমার তোমারি চরণে শুধু। আমার প্রণাম নাও গো প্রভু, রাখো আমার তোমারি চরণে শুধু। সদা প্রভু জীবনের পালক আমার, তুমি প্রভু আধারের আলো আমার, তাই গাই জয়গান তোমারি নামে, তাই গাই জয়গান তোমারি নামে। জয় জয় গান গেয়ে বুঝিব তোমার, তুমি জীবনে করিব প্রভু সবার মহান। জয় জয় গান গেয়ে বুঝিব তোমার, জীবনে করিব প্রভু সবার মহান। মুক্তির গান আমি গেয়ে যাব রে, রাখো আমার তোমারি চরণে শুধু। মুক্তির গান আমি গেয়ে যাব রে, রাখো আমার তোমারি চরণে শুধু। সদা প্রভু জীবনের পালক আমার, তুমি প্রভু আধারের আলো আমার, তাই গাই জয়গান তোমারি নামে, তাই গাই জয়গান তোমারি নামে, তাই গাই জয়গান তোমারি নামে। হালেলুয়া। ধন্যবাদ প্রভু। अपने सिरों को झुकाते हुए हमारे सृजनहार परमेश्वर को याद करें। ओ हालेलुया लॉर्ड, यस लॉर्ड जीसस।
मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यस प्रभु यीशु राजा, प्रभु मैं धन्यवाद करता रहूंगा प्रभु। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया। अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया। अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यस प्रभु यीशु राजा, मैं प्रभु जी आपको धन्यवाद देता रहूंगा प्रभु। मैं जीवन भर प्रभु आपको धन्यवाद देता रहूंगा, क्योंकि प्रभु आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है प्रभु। তুমি সর্বশক্তি। यस प्रभु यीशु राजा, রাজাদের রাজা তুমি প্রভুদের প্রভু। हालेलुया हालेलुया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया मुझको, अपना बेटा बनाया। यीशु ने
सा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यस प्रभु श्री राजा, धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु श्री राजा। प्रभु ओ हालेलुया प्रभु श्री राजा, धन्यवाद प्रभु। ओ हालेलुया प्रभु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु। হালেলুয়া প্রভু, তুমি একমাত্র মহিমা প্রশংসা পাবার যোগ্য ঈশ্বর। প্রভু গো, তোমার কোটি কোটি ধন্যবাদ দিই প্রভু। হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी पूरी जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर।
তোমায় কোটি কোটি ধন্যবাদ দিই প্রভু গো। হে প্রভু, তুমি মহান, তুমি সর্বশক্তিমান প্রভু। আমরা তোমার অবুঝ সন্তান পিতা গো। চলার পথে আমাদের জীবনের সকল ভুল অপরাধ তুমি ক্ষমা করো পিতা। হে প্রভু গো, এই মহিমা প্রশংসা তোমার চরণ তলে গ্রহণযোগ্য হোক। যদি ভুল ত্রুটি হয় ক্ষমা করো পিতা। আগের সকল ভার পিতা গো তোমার চরণ তলে রাখি, তুমি আশীর্বাদ করো পিতা। যতজন এখানে তোমার চরণ তলে আছি প্রভু, আমাদের প্রত্যেক জনকে তুমি আশীর্বাদ করো পিতা। ধন্যবাদের সঙ্গে এই প্রার্থনা আমাদের একমাত্র ত্রাণকর্তা ঈশ্বর প্রভু যিশুর নামেতে চাই, আমেন। अभी बाइबल रीडिंग का समय है। आइए हम लोग सब अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। भजन संगीता 130 एक पद से 8 पद है। पहला पद मैं पढ़ूंगी, सेकंड पद आप पढ़ेंगे और आखिरी वाला हम साथ में पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे या, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु, कौन खड़ा रह सकेगा। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। आइए आखिरी पद हम साथ में पढ़ते हैं। इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। परमेश्वर इस पढ़े जाने वचन पर हम सभी को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो। गवाही का समय है, तो गवाही में जाने से पहले एक स्पेशल सॉन्ग है, उसको सुनेंगे। उसके बाद फिर हम लोग गवाही की ओर जाएंगे। आपके जीवन में जो भी परमेश्वर ने कार्य किया है वो यीशु के नाम से गवाही देने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा सभी। और अभी मैं बुलाना चाहूँगा बहन शिल्पा को, वो आएंगी और परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे।
देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरे लिए चलता, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। थैंक यू। और अब इस समय गवाही का ये समय मैं आप सभी को देना चाहूँगा। आप लोग जल्द से जल्द आकर परमेश्वर के नाम से गवाही दे सकते हैं। हेलो, आप सबको जय मसीह की। मेरी गवाही है, लास्ट वीक ही तब मैं भूल गया था, जब गवाही का टाइम है मैं भूल गया क्या गवाही देना था, तो और एक दो इंक्लूड हो गया उसमें। कुछ दिन पहले बारिश हुई थी। बारिश होने के पहले मतलब मैं जब भी दुकान में काम करता हूँ ना, सारा मतलब मेरा पसीने से भीग जाता हूँ, मतलब गंजी पूरा तरबतर हो जाता है। तो फिर भीग के मुझे सर्दी आ गया था। सर्दी आ गया था उस दिन, फिर बारिश भी हुआ था। तो बारिश होने के बाद मैं पूरा भीग के हालत ख़राब हो गया था। मतलब मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं, कामजोरो बोलते हैं ना, कामजोरो की बनता है हिंदी में, वो कपकपी वाली ठंड बुखार हो गई थी मेरे को। अब रात में टेंस में था, फिर नेक्स्ट दिन मैं फिर शॉप कैसे करूँगा बोल के मैं टेंस हुआ था। मैंने प्रार्थना किया, सुबह हल्का फुल्का था, दोपहर तक ठीक हो गया, फिर शाम को जाकर दुकान आराम से कर पाया। दुकान में क्राउड भी था काफ़ी। इतनी बड़ी सी गवाही प्रभु यीशु के नाम पे। और अगर गवाही नहीं है तो आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और अभी समय है भेंट का, परमेश्वर ने जो दिया परमेश्वर को देने का। तो आइए उसके लिए विशेष एक सॉन्ग, स्पेशल सॉन्ग हमारे मध्य में उषा का ही नाम आया है। आ जाओ। सभी को जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद, फिर से मौका मिला। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है
हमारा बुद्धि जो है बहुत छोटा है, सीमित बुद्धि है, और इस सीमित बुद्धि से असीमित परमेश्वर को जानना ये जीवन भी काफ़ी नहीं है और ये बुद्धि भी काफ़ी नहीं है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हम जैसे तुच्छों को, जो हमारी गिनती है ये नहीं इस संसार में, परमेश्वर ने अपने संतान होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे ताली बजाते हुए। सच में प्रभु महान है। आप जानते हैं आप कोई दूसरे जगह नहीं बैठे हैं, परमेश्वर के भवन में, चर्च में बैठे हैं, और ये जो जगह है और यहाँ पे जो भी हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, वो परमेश्वर के महिमा के लिए हो रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो आइए हम लोग अब अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के वचन सुनने के लिए। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हमारे मध्य में पी शांति आंटी है, मैं उनको अनुरोध करूंगा वो सामने आएंगी और सभी लोग ताली बजाते उनको हौसला बढ़ाएंगे, और परमेश्वर ने उनको जो रेवलेशन, जो प्रकाशन दिया है, वो आज हमारे मध्य में वो बांटेंगी। थैंक यू भाई। सबको जय मसीह। हम लोग योग्य नहीं होते क्योंकि परमेश्वर हमें योग्य प्रदान करते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैं इस फुल फिट में खड़ा होने का योग्य कभी नहीं था और ना हूँ, मगर परमेश्वर मुझे मौका देता है कि मैं फुल फिट में खड़ा होकर परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर पवित्र वचन है, जो मैं आप लोग को सामने रखूँ। ये से मैं परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले हम अपने आप को रेडी करते थे, छोटे से प्रार्थना करते। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वज्ञानी सर्वभाती महान और अति पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जो आपको अनुग्रहदायक कृपा का द्वारा पिता आपने हमें आज को दिन देखने का मौका दिया मेरे परमेश्वर पिता। सच में पिता आपने पिता सारे संकटों में से, सारे दुर्बलताओं में, परेशानी में बचाकर आज के दिन तक आपने हमें जीवित रखे पिता। आज के दिन ये परमेश्वर सुंदर से दिन को आपने देखने मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ पिता। इस समय पिता परमेश्वर मैं ये परमेश्वर लॉर्ड प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो परमेश्वर लॉर्ड पिता आपने मुझे पिता योग्य समझा, और पिता परमेश्वर मैं आज पता ये परमेश्वर लॉर्ड पिता आपको फुल फिट में खड़ा हो गए पिता। आपको जो वचन है पिता परमेश्वर मैं बोलूँ पिता परमेश्वर लॉर्ड पिता, ये वचन आपका है मेरे परमेश्वर पिता। इसको बोलने का परमेश्वर लॉर्ड पिता अधिकार केवल आपका है मेरे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता आत्मा परमेश्वर शरीर मेरे रहे मेरे परमेश्वर पिता, यहाँ पे बोलने वाला शब्द आपको होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। जो भी परमेश्वर वचन पिता आज यहाँ से बोले जाए मेरे परमेश्वर पिता, वो पिता परमेश्वर लॉर्ड पिता बोलने में मुझे परमेश्वर और सुनने में यहाँ पे जितने भी लोग बैठे पिता सभी को पिता आप वचन को द्वारा काटिए छाटिए मेरे परमेश्वर पिता, और ये वचन पिता सबके जीवन में लागू होने पाए पिता परमेश्वर लॉर्ड पिता। ये वचन को द्वारा आप अपने महिमा लीजिए पिता। सारे विनती और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह कर चरणों में समर्पण करते हैं। छोटी सी विनती और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कर पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सच में मैं थोड़ा जल्दी बोल लेती हूँ, जब आपको लगे कि मैं जल्दी बोल रही हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आए तो प्लीज़ बता दीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही मुझे 5G का स्पीड में भेज दिया है, कि परमेश्वर जानते थे कि आज इस समय में किसी के पास समय नहीं है, वो रुकेगा नहीं तेरे बात सुनने के लिए, इसलिए तू 5 में बोल। तो गलती मेरे नहीं है ना, मुझे तो दिया गया है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। जब आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि मैं उसको रिपीट कर दूंगा। तो रिपीट करने से मेरा भी अच्छा है, क्योंकि मैं और उसको जान पाऊंगी ना। इसलिए आप लोग, अगर आप लोग को लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मुझे दोबारा पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं पिछले जब मुझे बताया गया कि आज के दिन मुझे वचन देना है, तो मैं बड़ा कंफ्यूज था कि मैं क्या बोलूँ, कि मैं बार बार परमेश्वर से पहले मैंने सोचा था कि मैंने पास्टर जी का छोटा सा क्लिप देखा था, उसमें पास्टर जी ने बोला था कि अगर हम परमेश्वर को फल पवित्र अगर फल नहीं होगा तो फल के बारे में बताया जा रहा था। तब मुझे लगा कि मैं लव को परमेश्वर प्रेम के बारे में बताऊं कि सबसे बड़ा फल प्रेम ही है। तो मैं प्रेम के बारे में सीख रहे थे, तो फिर प्रेम को मैं सीखते सीखते फिर मैं देख रही थी, पढ़ते पढ़ते फिर मुझे रियलाइज़ हो कि नहीं, फिर मैंने विश्वास के बारे में मैंने उसको रेडी करना शुरू कर दिया। नहीं, मैं प्रेम नहीं विश्वास के बारे में रेडी करती हूँ। तो ऐसे करते करते बाद में मुझे पता चला कि मैं ना तो विश्वास में रखी ना तो प्रेम में, मैं आकर रुक गई परीक्षा में, क्योंकि इन दिनों में हमारे कलीसिया में बहुत सारी परीक्षाएं आ रही है इंसान के रूप में। तो मैं ऐसी बात मैं बोलना चाह रही हूँ परीक्षाएं के बारे में। एक्चुअली मेरे वचन में बोलते हैं परीक्षाएं परमेश्वर की ओर से नहीं आता है, ना अच्छा ना बुरा, क्योंकि परीक्षाएं आता है तो हमारे अभिलाषाओं की वजह से आता है। जो हम करते हैं उसी का भुगतान हमको भोगना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल मैं खुद ही हूँ।
मैं ही बोल देती हूँ, मैं खुद की हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे टैबलेट खाना ज़रूरी है। अगर टैबलेट नहीं खाऊंगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है। और डॉक्टर ने ही बोला गया है मुझे कि आपको ये टैबलेट छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं क्या करती हूँ, क्योंकि दवाई और खाने में कोई पाप नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर ने जब भी अंधे को चंगा किया तो बोले तुम जगह बैठ कर दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना और दवाई खाना ये गुनाह नहीं है, ये कोई। फिर भी मैं सोचती हूँ कि नहीं खाऊं, तो पिछली बार भी मैंने, इस बार भी मैंने ऐसे ही किया। मेरा दवाई ख़त्म हो गया और मैं दवाई खाई नहीं, और फिर मैं बीमार पड़ गई, ऐसे बीमार पड़ गई कि मैं अपना सर भी नहीं उठा पा रही हूँ। और जब मैं सर उठाता हूँ तो मेरा सर घाँ, इतना आवाज़ आ रहा है, कान से आवाज़ आ रहा है, मैं गिरने पर हूँ, ऐसे बुरा हालत हो गया। और मेरा लड़का गुस्सा करने लगी, लड़की गुस्सा करने लगी, बोलने लगी आप बच्चे हो, आपको समझ में नहीं आता, ये किसी ने परीक्षा ही नहीं की थी, ये तो ना तो इधर से आया परीक्षा ना उधर से आया, ये मेरा गलती है। अब ये मैं किसी को दोष देने लग जाऊंगी, क्योंकि दोष देना तो हमारा अधिकार है, जन्म से अधिकार है, ये किसी हमने अधिकार लेकर आया, हम करते हैं और दूसरे को दोष लगा देते कि फलाने की वजह से हुआ, हम दोष लगा देते हैं। मगर ये दोष अगर आदम ने भी, उस समय में आदम ने बोला कि परमेश्वर मेरे से गलती हुआ तो हम लोग आज यहाँ नहीं होते ना, मगर मैं अपनी गलती को कबूल कर, मेरे गलती कबूल करने से फिर भी मैं अपने आप को सिद्ध रख पाऊँगी, इसलिए गलती मेरा था, इसलिए मैं परीक्षा में पढ़ी और मैं बीमार पड़ गई। और मैं इसी बजाय में बोलने जा रही हूँ, क्योंकि हम याकूब का 1-2 पढ़ने से हमको समझ में आता है। आप याकूब का 1-2 पढ़ दीजिए। याकूब का 1-2 बोलता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम्हें नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े तो इसको पूरी आनंद के बाद समझ। अब यहाँ पे वचन बोलता है कि जब आप परीक्षा में पढ़े तो पूरा आनंद समझो। कैसे? आप तो तकलीफ में है और आप आनंद कैसे समझ सकते हैं? मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे। अगर परीक्षाएं हमारे जीवन में ना आए तो हम अभी तक हम विश्वासी नहीं बने हैं। अगर विश्वासी हो तो परीक्षा आएगी। यानी कि कैसे बताऊँ, अब एक सेना है, जब तक सेना भर्ती नहीं होगा तब तक वो लड़ाई करने नहीं जाएगा। क्यों? वो भर्ती नहीं हुआ। जब वो लड़ाई तब करने जाएगा जब वो भर्ती होता है, तब वो सेना बनता है और तब वो लड़ाई करने जाता है, वो तकलीफ को उठाना पड़ता है। उसी तरह अगर हमें तकलीफ में आ रहा है तो हम भी बोलते हैं ना, तू क्या योद्धा है, योद्धा मतलब सेना है। हम क्या है? विश्वास का सेना है। अब विश्वास का सेना है तो हमें लड़ाई करना है। तो इसका मतलब है कि हम लोग अभी हमारे ऊपर परीक्षा आ रहा है तो हम लोग गर्व इसलिए मानना है कि हम लोग परमेश्वर के संतान बन चुके हैं, तभी हम पर परीक्षा आ रहा है। अन्य लोग को क्यों खुशी है? क्योंकि उन लोग परमेश्वर को संतान नहीं बने हैं, वो तो नाश होना ही है ना। उनको तो कोई करे ऐसे करे वैसे करो तो नाश तो हो गई, उनको कोई दुर्बलता नहीं। मगर हम नाश नहीं होंगे, हम बचेंगे। इसलिए ना बचे बोल के हम पर परीक्षाएँ आती है। तभी बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ पौलुस बोलता है कि जब हमें परीक्षा आए तो हमें आनंद मानना चाहिए कि हाँ, आनंद इसलिए मानना चाहिए कि हम परमेश्वर का संतान हो गया है। परमेश्वर बोलते हैं ना, मुझे सताया तो तुम लोगों को सताएगा, लिखा है ना वचन में। तो परमेश्वर को सताया है तो हमें भी सताएगा। तो परमेश्वर ने दुख भोगा है तो हमें भी भोगना है, क्योंकि कहीं भी वचन में ये नहीं लिखा गया है कि आप तुम विश्वासी हो, परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, तूने बपतिस्मा ले लिया तो राजा का जीवन जिएगा। कहीं भी नहीं लिखा है। हर जगह पर लिखा है परीक्षा तो आएगी, परीक्षा आएगी, मगर परीक्षा में पड़े रहने नहीं देगा। परमेश्वर बोलते परीक्षा में पड़े रहने नहीं देगा, उसी बिछाने में पड़े रहने नहीं देगा। परमेश्वर परीक्षा में से निकालेगा। ये हमारे परमेश्वर को वादा है। क्योंकि इसीलिए हमें जब परीक्षा आए तो हमें आनंद मनाना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे चुना। परमेश्वर धन्यवाद आपने इस योग्य मुझे जाना। क्यों? कि हम परीक्षा में है। ऐसे फिर ये भी नहीं कि आप खुद गलती करो और बोलो कि हाँ मैं तो परमेश्वर ने चुना मेरे को। आप गलती करके परीक्षा में आती है, परमेश्वर ने चुना नहीं है, वो आपको गलती से परीक्षा में आए हैं। परीक्षा में तब जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, आप मतलब आपने कोई इस तरह की चीज़ नहीं किया, आप परीक्षा में पढ़े तो ये सही परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आप गलती पे गलती करते जाओ, आप बुराई पे बुराई करते जाओ, परीक्षा में पढ़े तो ये नहीं सोचे कि हाँ मैं परमेश्वर को एक सेना बन गया, मैं मुझे परीक्षा आ रहा है धन्यवाद। ये नहीं। परीक्षा 2 तरह को होती है। एक अपनी गलती की वजह से आता है, वो परमेश्वर के वो किसी तरह क्या बोलते सराहने योग्य नहीं है। एक दूसरा गलती है कि हमने कुछ भी नहीं किया। अगर मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला और मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रही हूँ, मैं बुरा नहीं कर रही हूँ, तब भी मुझ पर दोष लगे जा रहा है, मुझ पर लोग कोसे जा रहा है,
वो परमेश्वर की महिमा के लिए होता है, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरे को बुरा नहीं कर रही हूँ, दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोच रही हूँ, दूसरे को बुरा निंदा नहीं कर रही हूँ, मैं अपने परमेश्वर को छोड़े किसी के बात में नहीं कर रही हूँ, फिर भी मुझ पर सताव आ रहा है, तो ये है महिमा, परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन से हो रहा है। इसलिए हमें गर्व करना चाहिए कि हाँ, मैं परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है और मैं अभी वो लड़ाई के युद्ध में खड़ा हूँ। जैसे अभी सेना लोग करेंगे वहाँ पे पाकिस्तान में लड़ाई कर रहे हैं ना, क्योंकि उनको चुना गया है, आर्मी के लिए चुना गया सरकार ने, तभी जाकर वो युद्ध करता है। हम लोग जाओ तो हमें युद्ध में नहीं जाने देगा, बोलेगा नहीं 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 आप आगे नहीं जा सकते, आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आगे आप लोग को जान का खतरा है, बोल के हमें जाने ही नहीं देगा, क्योंकि उसको चुना हुआ है। और इसी तरह हम भी परमेश्वर के चुने हुए है और हम में परीक्षा आ रहा है, तो परमेश्वर को धन्यवाद हो, क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, लिखा है ना, आनंद मनाना चाहिए। हम उसको दूसरा देखें, रोमियो नहीं आयुब को देख लेंगे, क्योंकि आयुब का देखेंगे, आयुब का 1 से 12 तक पढ़ने से बहुत अच्छे से समझ में आता है। उससे पहले हम करें उसी के 12 पढ़ेंगे, याकूब का 12 पढ़ देंगे, वहाँ भी बहुत अच्छा सा लिखा गया है, याकूब को 1 के बारे में बहुत अच्छा से लिखा गया है। मैं पढ़ देती हूँ। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खैरा निकाल के जीवन का वो मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाला से कही है। यहाँ कितना अच्छा से वचन है ना, क्योंकि अगर हम उस परीक्षाओं में अब अपने आप को रखेंगे, अगर जब परीक्षा आ रहे हैं तो हमें वो मुकुट मिलेगा जो परमेश्वर ने रखा है। अगर हम परीक्षा में अगर हम ढूंढेंगे नहीं, अगर हम परीक्षा में गिर जाएंगे, क्योंकि परीक्षा में गिरना संभव है, क्योंकि जब हम परीक्षा में होता है, जब हम दुख में होता है, तो हमें शिक्षा देने के लिए 1000 लोग आता है, 1000 लोग आता है कि ये करो वो करो, ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, मगर हमें केवल एक ही बात सुनना है, परमेश्वर के वचन में जो कहता है वो ही देखना है, क्योंकि सिखाने को हर कोई आता है, सुनना है, नहीं सुनने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है हाँ ये परमेश्वर के वचन को रहा है, वचन की तरह है ये, हाँ ये वो बात हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। अगर वो कोई आगे कुछ भी बोलता है, हर कोई चीज़ हमें नहीं लेना है, क्योंकि जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो 10 आदमी आगे 10 तरह का ज्ञान देता है, 10 तरह का ज्ञान देते हैं, बोलते ये करो ये करो ये करो, मगर आप वही करना है जो वचन, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी सॉल्यूशन, सबसे बड़ी ये है ना, ये है। और इसमें सब कुछ पाया जाता है, तो हम बाहर क्यों जाए, जबकि मेरे घर में है सब कुछ। मेरे घर में मैं किचन में खाना बना रही हूँ, तो मेरे किचन में सब कुछ है, हल्दी नमक सब, तो मैं बाहर लेने क्यों जाऊँ, क्योंकि जितना आवश्यकता है मेरे किचन में है। जबकि मुझे पता है कि मेरा सारे परेशानी का हल मेरे पास है, तो मैं बाहर क्यों जाऊँ, किससे क्यों मांगूँ, क्यों बुद्धि मांगूँ, क्यों किसी से सलाह मांगूँ, जबकि मेरा सॉल्यूशन देने वाला मेरे पास है, और ये मेरे हृदय में है, और साथ में बाइबल में है। हर एक प्रश्न का उत्तर बाइबल में है। अगर आपको दुखी भी हो तो दुख का हल भी है। तो हमें कहीं नहीं जाना है, प्रार्थना करने, और परीक्षा में सबसे बड़ी जब सबसे ज़्यादा हमें प्रार्थना करना है, प्रार्थना छोड़ना नहीं है। अगर प्रार्थना छूट गया तो आप गिर गए। मैं नहीं सोचा कि मैं इतना तकलीफ में, परमेश्वर ने मुझे नहीं देखा, मैं तो प्रार्थना कर रही थी। हाँ प्रार्थना करें तभी परीक्षा में आए नहीं आप। अगर इस परीक्षा से आप पार हो गए तो आपने मतलब बहुत अच्छा चीज़ पाओगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आइए पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा में जब आयुब भी तो पढ़े, हम आयुब में पढ़ते हैं, परीक्षा में जब आयुब कैसे पढ़े, क्योंकि आप परीक्षा में आयुब इसलिए पढ़े कि वो परमेश्वर ने चुना हुआ था ना। 1:6 से लेकर हमने 12 तक पढ़ने से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम देखने में कितना अच्छा पता चल जाता है ना, क्योंकि आयुब को परमेश्वर ने चुना था। वो आयुब एक अच्छा और विश्वास योग्य था, वो सब आराम से जी रहा था, मगर शैतान ने क्या किया, उसको परमेश्वर वहाँ पे परीक्षा आई कि उसको पता था कि ये आयुब अच्छा है, तभी वो परीक्षा में ले आए। और हमें पूरा पुस्तक पढ़ने से आयुब पर बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, उनको दोस्त भी आगे उनको निंदा करते हैं, हो सकता है तूने गलती किया होगा, मगर आयुष किसी की बात नहीं सुनता, तस्कमस नहीं होता है। वो परमेश्वर को विश्वास में, हाँ थोड़े जगह कहीं जगह पे लिखा है, परमेश्वर को बोलते कि मैं पैदा ना होता तो ठीक था, मैं माँ का घर में, मगर वो किसी को नहीं बोलते, वो अपने आप में खोजते हैं, मगर किसी को नहीं बोलते हैं, मगर वो अपने विश्वास में स्थिर रहता है, और लास्ट में वो जितना खोया था उसे दुगना मिल जाता है। इसलिए हमें परीक्षा में, हमें कभी भी परीक्षा में अपने आप को
मतलब क्या बोलते हैं, कमजोर नहीं करना। जब परीक्षा आता है तो जितना परीक्षा आता है उतने हमें प्रार्थना करना है, जितना परीक्षा आता है उतना हमें बाइबल पढ़ना है, क्योंकि जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम प्रार्थना करेंगे, हम दुगने हम क्या होता है आशीष का भागीदारी बनेंगे। ये परीक्षा आके हम बार बार कोई क्या करते हैं, हम ये भजन संगीत 119 का शायद मेरे ख्याल से 16-17 में लिखा गया है ना, 16-17 में लिखा गया है 119 का। नहीं, 16-17 में नहीं लिखा गया है। हाँ, ये क्या बच्चा 67 में 119 के 67 में लिखा गया है। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर सा वचन है ना। जब वो परमेश्वर को नहीं जानता था तो वो भटकता था, इधर उधर सबसे सहयोग मांगता था, ये मुझे कोई सहयोग करे, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते ही नहीं थे इसलिए भटक रहा था। हम परमेश्वर को जानते हैं, हम पर प्रॉब्लम आए हैं तो हमें भटकना नहीं है, हमें क्या करना है, सीधा परमेश्वर के चरणों में जाना है, क्योंकि वही एक है हल देता है। अगर हम दुनिया में आप उसको परेशानी का हल ढूंढो, कहीं आपको हल नहीं मिलेगा। एक ही डॉक्टर भी क्या बोलता है, अब मेरा हाथ में नहीं है, ऊपर वाले से प्रार्थना करो, डॉक्टर भी यही बोलता है, डॉक्टर भी यही बोलता है। मगर हमारा उससे ही प्रार्थना करना है तो हम दुनिया भर के लोग में क्यों जाए, दुनिया भर के लोग से क्यों हम विनती करें, जबकि हमारा सहारा, हमें सहयोग देने वाला हमारे पास ही है। तब हमें दूसरे के साथ क्यों भटकना। इसलिए जब भी तकलीफ आए हमें भटकना नहीं है, इधर उधर दूसरे से सलाह लेने नहीं जाना। अगर आप भटकोगे, सलाह लेने जाओगे तो क्या होगा, निश्चय आप भटक जाएगा। आप दूसरे के बात में ये भी एक बोलेगा, वो बोलेगा ऐसे करना चाहिए था, उसका लगा हाँ ये सही है, आपको लगे हाँ ये सही है, बात ये सही, मुझे करना चाहिए था। फिर दूसरा आप बोलते नहीं 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 वो सही नहीं, ये करना चाहिए था, आपको वो भी बात लगा हाँ शायद ये करना चाहिए होगा। क्योंकि आप 10 तरह का इंसान आकर 10 तरह का ज्ञान देने के चल जाएंगे, आपको वहाँ पे क्या होता है, बड़ा कन्फ्यूजन में क्या करेंगे, आप गलत कर देंगे। और गलत कर देंगे, आप गलत कर देंगे, जो सही होने वाला था वो भी गलत हो जाएंगे। इसलिए जब भी प्रॉब्लम में आए, जब भी तकलीफ में आए, भटकना नहीं है, हमें सीधा परमेश्वर के चरणों में जाने वाला सबसे। क्योंकि हम लोग भजन संहिता 41 में लिखा है ना, बड़े साहस से मिलने वाला परमेश्वर, पर इजी से, बरस मतलब इजी से मिल जाते हैं, वो परमेश्वर है हमारा। हमें परमेश्वर को ढूंढने का ना तो तराई में जाना है ना खारी में जाना है, हमारा परमेश्वर हमारा पास है, वो खोजने का देरी है। जब हम खोजने लगेंगे तो हमें परमेश्वर यूं ही मिल जाएगा। इसलिए हमें खोजना है, हमें भटकना नहीं है। हमें रोमियो को 8:18 पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कितना ना, अगर बोलते बोलते यहाँ पे हमें जो दुख हम सह रहा है, अभी जो हमें दुख आया, जो क्लेश हम सह रहे हैं, उस महिमा को जब हम इस दुख से पार होंगे, जब इस परिस्थिति से हम पार होंगे, जो हमें मिलने वाला है ये दुख, हम उसे पीछे देख के हंसेंगे, अरे ये ऐसे तो इतना से तो था ना, हम हंसेंगे। अरे अभी हमें बहुत बड़ा लग रहा है, क्योंकि अभी हमें उठाना पड़ रहा है। अगर कोई भी चीज़ आकर हम उठाएंगे तब हमें बहुत भारी लगता है ना, हाँ ये बहुत भारी है, इसको मैं कैसे, इससे कैसे राहत पाऊँ। उस राहत पाने की जगह में हम लोग क्या करते हैं, गलत काम कर देते हैं। हो सकता है कि हमें हम 10 जार ले जाना है तो हम उसको घटा के 5 कर दें, क्योंकि हमें वहाँ पे हमें क्या चाहिए, सुविधाएं चाहिए। मगर बाद में अगर आपने 10 का 10 उठाकर आप मंजिल में पहुँचे तो जो 10 है, जो 10 लेकर जाने के लिए बोला, जो अधिकारी देखेगा वो 10 का 10 मिलेगा, तो आपको प्रतिफल क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। अगर आप 10 में मैं इतना उठा नहीं पाया, अगर रास्ते में आपने घटा दिया, अब जब वहाँ आप मंजिल में पहुँचे देखा तो आपको 10 नहीं है 5 है, तो जो अधिकारी को जो 5 आपको क्या होगा, वहाँ पे आपको क्या, आपको नहीं, आपने 5 लेकर आया करके आपको शाबाशी नहीं देगा, वहाँ पे आपको दंड देगा। इसलिए जब हम तकलीफ में पहुँचता था, हमको तकलीफ को घटाने के लिए उल्टा ऐसे उसे हम उल्टा काम करते हैं, हमें नहीं करना है। उस तकलीफ में हमें परमेश्वर का नाम लेकर तकलीफ उठाते हुए आगे जाना है, और हमें क्या करते हैं, उस तकलीफ से राहत मिल जाएगा। जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो उसको देख के हमें हंसेंगे, अरे इतनी छोटी चीज़ थी, हमने पार कर ली। क्योंकि वो जो छोटी सी चीज़ के बाद में हमें जो मिलने वाला है, बड़ा मिलने वाला है, बड़ा आनंद जीवन मिलने वाला है ना, कभी भी ना ख़त्म होने वाला जीवन मिलने वाला है, परमेश्वर का साथ मिलने वाला है। अगर कोई बोलेगा मोदी आज तेरा साथ आकर तेरे साथ खाना खाएगा,
तो सभी खुश हो जाएंगे, क्योंकि मोदी तो मेरे साथ खाना खाने वाला है ना। सब खुश हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? होंगे ना, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है। उसको मिलने के लिए लोग घंटों महीना कितना साल तक इंतजार करता है। आपको इजीली बोलेगा कि हाँ परमेश्वर के मोदी आज आप फलाना के साथ खाना खाने वाला है, उसको तो फूलों को नहीं समाएगा। उससे बड़ा हमारे परमेश्वर है, जो अगर हम तकलीफ में से गुजरेंगे तो वो हमारा साथ बैठ कर खाएंगे, है ना। क्योंकि हम अगर पर से बाकी में देखे तो बोलते हैं ना, परमेश्वर द्वार में खड़ा होकर खटखटा रहा है, जो खोलेगा उसके पास आकर हम बैठ कर खाएंगे। परमेश्वर दुख के टाइम में खटखटा रहा है, टक टक टक, खोलो खोलो मैं हूँ। मगर आपको क्या होता है, परमेश्वर का आवाज़ सुन नहीं रहे होते आपको तो दूसरा बोल रहे हैं ना, क्योंकि परमेश्वर का जो खटखटाना आप आपने सुन कर दरवाजा खोल दिया होता तो तकलीफ से आप आसानी से बाहर निकल जाते। मगर आप लोग को परमेश्वर को खटखटाना सुना नहीं और आपने दूसरे राह लिया, इसलिए तकलीफ बढ़ गया। इसलिए हमें परमेश्वर को खटखटाने का आवाज़ सुनना है। उस तकलीफ में कैसे निकलना है, हमें बाहर नहीं जाकर सोचना है। उस तकलीफ के लिए हमें घर में ही परमेश्वर से ही पूछने के, परमेश्वर हम इस प्रॉब्लम से, इस मुसीबत से, इस बीमारी से, इस कर्जा से, इस तरह अनेक तरह की चीज़ें हम कैसे निकलेंगे, परमेश्वर हल निकालेगा। क्योंकि जब हम देखते हैं ना उत्पत्ति में देखते हैं, तो जब इजराइली लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रार्थना कर रहे थे ना, उन लोग प्रार्थना कर रहे थे, तब जाकर परमेश्वर ने जब सुना तो मूसा को भेजा उन लोग के लिए जरिया बनाकर कि हाँ तू जाओ और इजराइल को निकाल कर आ। आप भी प्रार्थना करते रहिए ना, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन 12 दिन 1 हफ्ता महीना दिन, तो परमेश्वर भी आपके लिए जरिया भेजेगा, कोई ना कोई तो भेजेगा ना, किसी न किसी को ऊपर तो निकालेगा आपके लिए। मगर हमें टूट कर नहीं, हम इंतजार करना है, क्योंकि बोलते हैं ना हमें धीरज धरना आवश्यकता है। जब हमारे पास धीरज नहीं, इंसान कब गलत काम कर देता है, तब करता है जब हमारे पास धीरज नहीं होता है। जब हम धीरज के साथ हम परमेश्वर को सेवा करते रहेंगे, धीरज के साथ प्रार्थना करते रहेंगे, तो क्या होता है, हमें धीरज क्या होता है, हमें बल देता है। अब धीरज के साथ हम सेवा करते रहेंगे तो क्या होगा, हमें प्रतिफल मिलेगा। हम उतावली करते हैं तब जाके हम गिरते हैं। अगर बच्चे को बोलते ना ए जोर से मत गिर, हम बच्चे को दौड़ते देखते नहीं ऐसे मत दौड़ तो गिर जाएगा, क्योंकि उतावली से दौड़ रहे होते वो। उसी तरह हम भी क्या करते हैं, उतावली से कर लेते हैं ना, बिना सोचे बिना समझे कर जाते हैं, तब जाके हम गिरते हैं। यूँ ही नहीं गिरते हैं, यूँ ही हमें प्रॉब्लम नहीं आती, यूँ हम परिश्रम नहीं पड़ता, तब हम परिश्रम पड़ता है कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं। बोलते समय भी सोचते नहीं कि हमें बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए, बोल देते हैं। करते समय भी ये नहीं सोचे कि हम करना है कि नहीं करना चाहिए, कर देते हैं। बात में उसका प्रतिफल क्या होगा कोई नहीं सोचता है। उन लोग खाली आगे का देख रहे हैं कि अभी इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूँ, इस प्रॉब्लम से कैसे आगे जाऊँ। अरे इस प्रॉब्लम को निकाले वो आगे भी तो है लाइफ, आगे भी तो कैसे, अगर इस प्रॉब्लम को हम सही रीति से सॉल्व करके जाएंगे तो आगे उसको समस्या नहीं होगा ना। अगर हमने ये तो उल्टा पुल्टा लपटा कर चले जाएगा तो आगे जाएगा तो उसी प्रॉब्लम को दुगना होकर हमारे पास आ जाएगा। मानो कि मैंने आज किसी से 2 रुपये लिया है एग्जाम्पल के लिए, और मैंने उसको ऐसे उसे बोलकर टाल दिया, उसको पैसा ही नहीं दिया है ना, उसको पैसा ही नहीं दिया, वो भी अब छोड़ दिया, निकल गया। आगे जाकर मुझे उसमें 1000 रुपये का प्रॉब्लम, 1000 रुपये का क्या ज़रूरत पड़ गया। अब देने वाला मैं क्या करूँगी, मांगने उसका अगर मांगने जाऊँगी तो देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि ही पहले से मैंने उसके बाद हेरा फेरी किया है। अगर वो 2 रुपये मैं पहले दे देते तो अभी मुझे 1000 रुपये मिलता ना, कि मैं विश्वास योग्य बनता था, क्योंकि हमने गलत किया तभी जाके आगे फंसता है। अगर हम गलत नहीं करेंगे तो आगे जाके फंसेगा ही नहीं। इसलिए जब भी प्रॉब्लम आए गलत तरीक़ा से, गलत चीज़ों से गलत कर निकालने की कोशिश मत कीजिए। जब प्रॉब्लम आए तो सही चीज़ करके, सही उपाय करके, परमेश्वर को उपस्थिति जानकर, जो परमेश्वर को लोग है, जो परमेश्वर में गहरे तरह से जानते हैं, परमेश्वर को विश्वास में स्थिर है, उस आत्मा से आप सलाह ले सकते हैं, जो परमेश्वर के वचन को द्वारा आपको समझाएगा। अगर बाहर के लोगों की तरफ आप जाएंगे सलाह लेने के लिए तो बाहर के लोग बाहर का तरीका से समझाएगा। अगर विश्वासी से जो परमेश्वर को वचन जानता है, वचन पढ़ता है, वचन का अनुसार चलता है, अगर आप उसके पास सलाह लेगा तो वो कभी भी गलत सलाह नहीं देगा, वो आपको वही सलाह देगा जो वचन में लिखा है आपको, क्योंकि वो एक विश्वासी है, वो झूठ नहीं बोलेगा। विश्वासी का मतलब क्या होता है, एक विश्वासी मतलब जो झूठ नहीं बोलता, जो परमेश्वर को अधीन में रहता है, उसको विश्वासी बोलते हैं। अगर आप वैसे आत्मा से सलाह लें, आप बाहर के लोगों से सलाह लेंगे तो बाहर के लोग बाहर का तरीके से बताएंगे और आगे जाके आपको ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अगर मैं जल्दी बोल रहा हूँ, स्पीड बोल रहा हूँ क्या, मैं स्पीड बोल रहा हूँ क्या, नहीं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सच में मैं बोलते बोलते इतना स्पीड बोल जाता हूँ कि मेरा दीदी ही बोलते कि तूने क्या पढ़ा, दोबारा रिपीट कर,
बोलती है, मेरा दीदी बोलती है, ए तूने क्या बोला, दोबारा रिपीट कर। तो अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो मैं दोबारा रिपीट करूँ, आए ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे भजन संगीत ना, तीमुतीस 2 तीमुतीस का 3 का 12 पढ़ लेंगे। देखिए कितना जो बोलता, जो भी परमेश्वर को भक्ति के साथ, जो परमेश्वर को विश्वास के साथ जीवन बिताना चाहेगा वो तो सताया जाएगा ही, उसमें तकलीफ तो आएगा ही। वो तक तो मतलब ऐसा नहीं लिखा है कि जो परमेश्वर को भक्ति के साथ जीवन बिताएगा वो फूलों के उसमें चलेगा, मलमल के बिस्तर में सोएगा, राजमहल में जाकर खाना खाएगा, नहीं लिखा है। बोलता सताया जाएगा, मगर सताया जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि सताते रहेगा। कुछ दिन के लिए पहले आप लोग को सताया जाएगा। जब आप इस चीज़ों से आप निकलोगे ना तो आप वो चीज़ को पाओगे जो किसी नहीं, मतलब पहले स्वर्ग राज्य को खोजी करो, सारे वस्तु मिल जाए। अब जब खोज रहे हो ना तो तकलीफ तो आएगा ही ना, क्योंकि आप खोज रहे हो। जिस दिन पाएगा सारे तकलीफ से पार हो जाएगा। अभी खोज रहे हो इसलिए तकलीफ हो रहा है। जब कोई चीज़ नहीं मिलता है तो हमें तकलीफ होता है ना। अगर मेरे मानोगे, मेरे कुछ जैसे अनमोल चीज़ मेरे मानोगे, मेरे एक तोला का मैंने 1 तोला का सोना पहना है, मगर तो मेरा सोना गिर गया, मुझे उसको ढूंढने में तकलीफ होगा, क्योंकि मुझे सारी चीज़ को हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो अनमोल है ना। हाँ अनमोल है तो मैं उसको सारी चीज़ को हटाऊंगी, चाहे उससे छानबीन करूंगी, सब देख के ही तब जाकर क्या करूँगी, मैं उसको खोजने के लिए मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि वो टाइम भी लगेगा और मुझे परेशानी भी होगी, क्योंकि मेरे सजाए घर के मैं तितर बितर कर दूंगी, इधर कोने कपची में जो गंदा पड़ा उसको निकालूंगी, क्योंकि वो मेरा अनमोल चीज़ है, खो गया है और ढूंढ रही हूँ तो मुझे तो परेशान हो रहा है। उसी तरह परमेश्वर भी अनमोल है, वो सोने का तो मूल लगा सकते हैं, मगर परमेश्वर अनमोल है, इसका मोल नहीं लगा सकता है। हम उसको ढूंढ रहे हैं तो परेशानी तो झेलना ही पड़ेगा ना, थोड़े बहुत ईजी जैसे नहीं होगा ना। बोलते ना दाल भात है क्या तो मिल जाएगा, बोलते हैं ना दाल भात। आजकल दाल भात पकाने के लिए भी इतना गर्मी, बोलते हैं कि दाल भात तो कोई पका कर देते थे, खा ले, तो गर्मी हो रहा है, किचन में कौन जाएगा सोचते हैं, बोलते ना। इसलिए परमेश्वर को खोजते समय तकलीफ तो होगा, मगर हम लोग को तकलीफ में निराश नहीं होना है। तकलीफ आ रहा है तो सामना करना है, सामना करे तो शैतान भागेगा, बोल के हम लोग गाना गाता ना, तो वही सामना करना है। और जब हम ये सब कुछ करेगा तब जगह हमें आनंद जीवन मिलेगा। इसलिए तकलीफ आ रहा है करके कभी भी पीछे नहीं मुड़ना है। तकलीफ आ रहा है बोल के हमें फिर से मतलब गलत राह नहीं लेना है। तकलीफ पे आ रहा है तो तकलीफ को सहते हुए, लड़ते हुए, कचरते हुए, रोते हुए आगे बढ़ना है। जब आगे बढ़ोगे तो परमेश्वर हमें क्या विजय जीवन देगा। वो विजय जीवन ना देखेंगे आगे, जब हम आगे जाकर उस विजय जीवन को देखेंगे ना तो हम बोलेंगे हाँ, क्योंकि जैसे ऐसे ही पौलुस नहीं बोला ना, पौलुस बोलते हैं ना, मैंने अपना दौर पूरा कर लिया। क्यों यूँ ही दौरा पूरा कर गया। पौलुस को जीवन देखने से बोलता ना, उसको तो कितना सताया गया, कभी जल खाने में रखे गया, कभी पूरा सभा में लेकर मारा गया, उसको कितना कुछ किया। इस सब कुछ करने के बाद तो उसने बोला ना मैंने अपने मुकुट पा लिया ना, अपना दौर पूरा कर लिया। यूँ ही दौर नहीं पूरा किया उसने, भी दौर पूरा करने के लिए यूँ ही नहीं किया, उसको भी दौर पूरा करने के लिए बहुत सारा तकलीफ सहना पड़ा, बहुत सारे परेशानी सहना पड़ा। इसलिए उसने बोला कि मैंने अपना दौर पूरा किया। उसको दौर पूरा करने के लिए ईजी नहीं था, उसका जीवन बहुत ही, हम लोग को तो सबको सहना भी नहीं पड़ता। हम लोग को थोड़ा बीमारी आता है, थोड़ा बहुत खर्च आता है, थोड़ा थोड़ा परेशानी आता है। उसको तो कितना कुछ आया था, उसको तो जेल खाने में जाना पड़ गया था, 20 बाजार में उसको पत्थर से मार दिया जाता था, मारने का षड्यंत्र मचा जाता था, सब कुछ करता था। फिर भी पौलुस क्या अपने आप को स्थिर रखते हुए उसने बोला कि मैंने अपने दौर पूरा किया। इसी तरह हमें भी अपना दौर पूरा करना है। दौर पूरा करना इजी नहीं होता है, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, हमें दौड़ना ही पड़ेगा। चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे बंधन आए, हमें दौर में रुकना नहीं चाहिए। हमें रोकने वाला भागने वाला नहीं होता है, हमें रोकने वाला हमारा ही होता है, हमें जान पहचान वाला होता है, जो हमको जानता है वही हमें रोकने के लिए आता है। 12 वाला तो फर्क भी नहीं पड़ता कि कहाँ जा रहे क्या करे, जाओ कुछ भी, मगर हमें सताने वाला हमारा ही होता है, हमारा जान पहचान वाला हमारा ही होता है, वही सताता है। उसके लिए उसके बावजूद भी हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है। ये सोच कर हमें पीछे नहीं रुकना है कि हमें सतावट आ रहा है, सतावट तो आएगा ही, बोलते हैं ना। और हम देखेंगे भजन संहिता 130 का 5 देखेंगे। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ,
आत्मा नहीं ऐसा थी इसका पर मैं वही है, मैं खाली मैं खुद मैं पढ़ रही थी, वही है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना, यहोवा का बात जो तो कि मैं जी से उसका बात जो होता हूँ और मेरी आशा उसकी वचन पर है। यहाँ पे लिखा गया है ना कि हमें परमेश्वर के हमारा आशा किस में होना चाहिए? वचन, परमेश्वर के वचन पर। वचन मतलब शब्द है ना, वचन मतलब शब्द, परमेश्वर का शब्द है, ये एक एक चीज़ शब्द है। इसी पर हमें क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। हमें परमेश्वर को इंतजार करना है, हमें इंतजार करना है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला मैं आऊँगा तो इससे आएगा ना। इंसान थोड़ी ना कि मैंने बोला कि मैं आ जाऊँगा और बोल दे कि नहीं तो मेरा पाँव में दर्द है मैं नहीं आ पाऊँगा, आ पाई, मेरा सर दर्द तो मैं ना। इंसान परमेश्वर है, अब परमेश्वर ने बोला मैं तुझे लेने आऊँगा तो निश्चय आएगा। उसके लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन पर आस लगाकर, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके उनका बात छोड़ना है, उसको इंतजार करना है। हमें किसी और की बात सुन के इंतजार नहीं करना है, परमेश्वर के वचन सुन के। क्योंकि परमेश्वर जानता था कि इस युग में परमेश्वर के वचन का आवश्यकता है, तभी जाके उन्होंने एक एक व्यक्ति को चुन कर लिखवाया। अगर परमेश्वर जानता था कि इस युग के लोगों को ना ये जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर पता ना हम परमेश्वर को देख नहीं सकता, मिल नहीं सकता, हमें कैसे विश्वास होगा परमेश्वर? वचन के द्वारा। इसलिए परमेश्वर ने वचन रख छोड़ा हमारे लिए कि ये पढ़े और जाने, परमेश्वर को जाने। यूं ही नहीं, परमेश्वर को जानने के लिए प्रेम पत्र, ये हमारे लिए क्या है? प्रेम पत्र है, परमेश्वर का प्रेम पत्र है। पहले तो हम लोग फ़ोन नहीं था तो हमारा ब्रदर दूर रहते थे तो हम भी लिखते, प्रेम पत्र बहुत लिखते, वो भी लिखते थे। कभी एक ही इकट्ठा आ जाते थे, 10-12 एक ही इकट्ठा आ जाते थे। तो क्योंकि हम लोग दूर था ना, पोस्ट में आते कब जमा होते होगा एक ही इकट्ठा आ जाता था और भेजा अलग अलग दिन में होता था। उसी तरह ये भी, जैसे हमारे ब्रदर के लेटर एक इकट्ठा आ जाता था ना, ये भी परमेश्वर को लव लेटर एक इकट्ठा मिला है पढ़ने के लिए, और अलग अलग दिन लिखा, अलग अलग समय में है, मिला है एक इकट्ठा। इसलिए हमें भी परमेश्वर के वचन प्रेम पत्र एक इकट्ठा मिला है। तो इस प्रेम पत्र को पढ़ो और परमेश्वर से प्रेम करो, आगे बढ़ो। क्योंकि जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है ना, वो कभी लज्जित नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन बोलता है ना, कोई परमेश्वर निकट आने वाला लज्जित नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर के सामने जाने वाला कभी टुकड़ों को नहीं मांगता है। कोई बोलता है ना अल्लाह का नाम में दे दे, इसका नाम में दे दे। कभी आप लोगों ने देखा प्रभु यीशु मसीह का नाम में दे दे बोलते? देखा नहीं, कोई भी नहीं। ऐसे कहीं जगह जाओ, देश को कोने कोने में, छोटे छोटे जगह में जाओ, कोई भी प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हुए आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर ने भिखारी, हम राजदीवा क्या है? हम राजकुमार राजकुमारी है, और हमको मांगने का आवश्यकता नहीं है, हमें देना है। क्योंकि हम देने के लिए बनाए गए परमेश्वर ने, हम उनका पुत्र पुत्री है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है? एक तलवार है, जब भी जरूरत पड़े चलाओ। और ऐसे यूँ ही नहीं चलाना है, समय हमें जानना चाहिए कि किस पे चलाना है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को लेना जरूरी है। हम लोग व्यवस्था विवरण का पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 31:6 लिखे पढ़ेंगे। देखो कितना हमें कितना सुंदर वचन है ना। बोलता कि परमेश्वर वचन बोलता कि मैं तेरा संग हूँ, मैं तेरे साथ चलूँगा, तो तुझे संभालने वाला मैं हूँ, है ना। परमेश्वर बोलता मैं तुझे संभालने वाला मैं परमेश्वर हूँ, डर मत। क्यों? हम देखें ये डर नहीं, बहुत जगह लिखा है ना। हम लोग देखने से ऐसा 41 का 10 में भी लिखा गया है, और यिर्मयाह का 43 के 10 में सच कहीं वहाँ पे लिखा गया है। हर जगह लिखा है डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर तक। क्योंकि परमेश्वर बोलते मैं तेरे साथ हूँ, क्यों डरेगा तू? अरे चाहे मुसीबत में आए, तकलीफ में आए, परेशानी में आए, तू क्यों डरेगा? मैं तेरा साथ हूँ, मैं तेरे साथ साथ चलूँगा, हर तकलीफ हर परेशानी से तुझे निकालूंगा। परमेश्वर का वचन ही बोलता है ना, उतना ही दुख देंगे जितना हम सह सकता है। उससे भाई हम लोग बोलते हैं ना हम सह नहीं पा रहे, मगर हमें गलत बोलते हैं। परमेश्वर जानता है कि तू कितना सह सकता है। और जैसे पता चले कि हम सह नहीं सकता है, जैसे आयुब को पता था, आयुब जितना दुख सह सकता था दे दिया। जब परमेश्वर जानते थे आयुब इससे ज़्यादा नहीं सह सकता, अब परमेश्वर आयुब को बीमारी को चंगाई कर दिया ना। आप देखो जहाँ भी जाकर देखो, मगर हम लोग बोलते इतना तकलीफ में सह नहीं पा रहा हूँ। ये हम परमेश्वर जानता है हम कितना सह सकते हैं, उतना ही दुख देगा जितना हम सह सकते हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है कि उतना ही दुख देगा जितना हम सह सकते हैं, उससे बाहर नहीं देगा।
तो परमेश्वर हमें बोलते हैं डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर हर जगह बोलते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे लिए फिरता हूँ, तुझे अपने हथेली में। जब परमेश्वर बोल रहा है डर मत, मैं तेरा साथ हूँ, क्यों डरेंगे? परेशानी आए, मुसीबत आए, तकलीफ आती, क्यों डरेंगे? क्योंकि छुड़ाने वाला तो हमारे साथ है ना। बच्चे क्यों, अगर बच्चे, हम छोटे बच्चे देखेंगे 2 साल 3 साल के, अभी देखो देखा है ना, वो बच्चे वो दौड़ेंगे, इधर उधर दौड़ेंगे, क्योंकि उसको पता है कि मैं गिरूंगा भी तो मेरे मम्मी मेरे पापा मुझे संभालेगा, क्योंकि उसको उतना भरोसा है ना। जब वो छोटा बच्चे का भरोसा है कि अपने मम्मी पापा संभालेगा, तो हमें क्यों भरोसा नहीं है अपने परमेश्वर पर? जब मैं गिरूंगा वो तो मेरे परमेश्वर आकर मुझे उठाएगा, मैं तकलीफ में हूँ तो मैं तकलीफ से मेरे परमेश्वर निकालेगा। क्यों भरोसा नहीं है? क्यों हम भटक रहे हैं? क्यों हम इधर उधर सहारा मांग रहा है? मुझे दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, क्यों बोल रहा है? मुझे सलाह दे, मैं क्या करूं, क्यों बोल रहा है? क्यों? आपको अपने परमेश्वर भरोसा नहीं है? अपने परमेश्वर से मांगो, सलाह उससे मांगो, और वो ही सलाह देगा। उससे बढ़कर सहारा और कोई नहीं दे सकता। इंसान 2 दिन 4 दिन 6 दिन 12 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना देगा। 1 महीने बाद वो भी उग जाएगा, बोलेगा मेरे घर का काम नहीं किया, तुझे दिखते रहूँ। परमेश्वर नहीं बोलता है। परमेश्वर आजकल और आने वाले काल, जब तक हम संसार में जीवित है तब तक परमेश्वर उफ नहीं करेगा हमें सहारा देने के लिए, उफ नहीं करेगा हमें कुछ देने के लिए, क्योंकि वो हमारा साथ साथ चलता है। इसलिए हमें डरना तो हरगिज़ नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। हम आज का एक वचन पढ़ते हैं, हबक्कुक 3:19। एक मिनट, मैं भी निकालूँ, मैं निकाली नहीं, क्योंकि यहाँ पे हबक्कुक लिखता है ना, परमेश्वर मेरा बल है, मेरा पाँव क्या हिरनी के समान। हिरनी तो मतलब पहाड़ों में चलता है ना, वो हिरनी पहाड़ों में गिरता नहीं है, क्योंकि उनके पाँव में पता नहीं ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे जकड़ने का कोई चीज़ होगा। मैंने देखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैंने कभी हिरनी को मैंने सामने से नहीं देखा है, वही कभी कभी पिक्चर में से, वो टीवी में देखा है मैंने, और दूर से देखा है, नज़दीक से भी कभी नहीं देखा। तो उसका पाँव कैसे है मैं नहीं जानती, मगर वो पहाड़ों में ज़्यादा चलता है, उसको मुझे लगता है कि उसका ग्रिप बहुत अच्छा होता होगा ना। अगर जब तक ग्रिप अच्छा नहीं होगा तब तक हम करें, मतलब कहीं भी चढ़ नहीं सकता है ना। अगर देखो, अगर किसी चीज़ को देखो कि उसका ग्रिप, जैसे बिल्ली को देखो, बिल्ली को क्या होता है, उसको पकड़ने का वो सामर्थ्य जाता है तो कहीं भी चढ़ जा सकता है। उसी तरह परमेश्वर हमारे पाँव को क्या कोई हिरनी के समान बनाएगा। आप जहाँ भी जाओ गिरने नहीं देगा, यानी कि हमें अब हम लड़खड़ाए भी तो परमेश्वर हमें गिरने नहीं देगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए हमें कभी नहीं डरना चाहिए ना। हम लोग मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं, यूहन्ना का 19:26 में एक वचन लिखा गया है ना, हमने पर करे तो डर मत, हम के संसार को जीत लिया करके। 16:19 ऐसे कुछ तो। नहीं उस नहीं। शायद इसमें यूहन्ना में बोलते हैं ना, तुम लोग डर करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन है बना 19:26 में शायद। हाँ 16:33। यस, यहाँ पे देखो क्या परमेश्वर बोलता है ना, मैं तुमको इसलिए बता दूँ क्योंकि संसार में क्लेश होगा। बोलता है कि संसार में आप रहोगे तो संसार में आपको दुख होगा, मगर शैतान को परमेश्वर ने जीत लिया है। जब जीता हुआ चीज़ हमारे पास है तो हम क्यों डरे? अगर ये मेरे पास है, ये कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि ये मेरा है ना, तो मैं इसके बाद में डरूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरा है। उसी तरह संसार परमेश्वर ने जीत लिया है। परमेश्वर का तो हमारा भी है। जो पिता का होता है वो बेटे का होता है ना। अगर पिता का है तो वो हमारा भी है ना। अगर मेरा घर मेरा है तो मेरा दोनों बच्चे का भी है, क्योंकि उसका अधिकार है। परमेश्वर ने संसार को जीत लिया है तो संसार हमारा भी है, उसमें अधिकार हमारा भी है, और हम उस संसार को अपने अधीन में रहकर संसार को बोल सकते हैं कि तुम मुझ पर अधीन नहीं कर सकता। क्यों?
परमेश्वर ने संसार को जीत लिया है और हम संसार के अधीन में नहीं है, हम परमेश्वर के अधीन में है और संसार हमारा अधीन में रहने चाहिए। संसार में हम रहे मगर संसार हम में ना रहे। संसार में बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है, चलना पड़ता है, मगर संसार को अपने अंदर लेके नहीं, संसार में हम चले। संसार हमारा अंदर नहीं चलना चाहिए क्योंकि संसार को परमेश्वर ने जीत लिया है तो हमारा अधीन में है, उसका अधीन में हम नहीं है। इसलिए हमें उसका अधीन में नहीं चलना है, हमें उसको अपने अधीन में लेकर चलना है क्योंकि संसार को परमेश्वर ने जीत लिया। क्लेश आएगा, संसार में है बहुत तरह का क्लेश आएगा क्योंकि हमें संसार में खाना पीना पड़ता है, पैसा का तकलीफ होगा, बीमारी होगा, किसी कभी छोटा मोटा होगा, सब कुछ होगा, मगर फिर भी नहीं डरना क्योंकि सारे चीज़ों को परमेश्वर ने जीत लिया है। जब परमेश्वर ने सब कुछ कर लिया है तो हम क्यों डरना। जब परमेश्वर ने बोला ना कि जब क्रूस में चढ़ रहे थे, परमेश्वर ने बोला पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? ये सारी चीज़ पूरा हुआ। बीमारी को परमेश्वर ने जीत लिया और गरीबी को परमेश्वर ने जीत लिया, सब कुछ हो गया। परमेश्वर ने बोला सब कुछ हो गया है, मतलब सब कुछ हमारा है। अभी हम किसी के अधीन में नहीं है, और सब कुछ हमारा अधीन में है। और अपने अधीन में रहो, आप अधीन में रहो और लड़ो और परमेश्वर के वचन को लड़ो और उनको हराओ और आगे बढ़ो। बीमारी है तो बीमारी को हराओ, है ना, गरीबी है तो गरीबी को हराओ। ये अधिकार परमेश्वर ने दिया है ना, जो मैं करता हूँ तू भी कर सके, उससे ज़्यादा करेगा। परमेश्वर ने बोला कि मैं कर रहा हूँ, वो तुम भी करोगे, उससे ज़्यादा करोगे। परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर ने बोला है तो हमें परमेश्वर अधिकार दिया है। अधिकार को लेना है हमारे हाथ में। जैसे मैं अभी एग्जाम तरीके से बताऊँ, हाँ, ये डब्बा है, ठीक है, ये मुझे दिया गया है, ये डब्बा मुझे दिया गया है। अगर मैं इसको देखते रहूँगी तो मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगी। अगर मुझे इस्तेमाल करना है तो इसको लेना पड़ेगा। वैसे ही अधिकार हमें दिया गया है, परमेश्वर ने सारी चीज़ का अधिकार दिया गया है, मगर हमें क्या करना है, लेना है। अगर मैं इसको देखते रहूँगी ना, हाँ ये मुझे दिया गया है, ये मुझे दिया गया है, मैं इसे मुझे दिया गया है, हम इसको घूरते रहेंगे तो ये कभी भी प्रयोग नहीं कर पाएंगे, कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस्तेमाल करने के लिए, प्रयोग करने के लिए इसको लेना जरूरी है। परमेश्वर ने अधिकार दे चुका है, हम लोगों को हक दे चुका है, मगर दिया बोल कर ना, हाँ परमेश्वर ने दिया करके मैं ऐसे करके घूमूंगा तो कभी इसका इस्तेमाल ही नहीं करूँगा, ये तो जंग लग जाएगा, ये तो कूड़ा बन जाएगा। मगर इसको इस्तेमाल करना है, परमेश्वर ने दिया, हमें लेना है और इस्तेमाल करना है। जब तक आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा क्या चीज़ है। मुझे कोई स्वीट लेकर देगा, अगर बोलेगा मेरे पास स्वीट है, अगर मैं खाऊंगा नहीं तो मीठा है कड़वा कैसे पता चलेगा। चक्कर देखो योगा कैसे भला है, ऐसे नहीं बोला गया है ना भजन संगीता 37 में। मतलब इसलिए बोला है कि आप टेस्ट करके देखो, आपको दिया गया है अधिकार दिया गया है, आपको इस्तेमाल करना है। रख के घूरना नहीं है कि हाँ ये मुझे दिया गया है। आप घूरते रहोगे ना तो घूरते रह जाओगे, इस्तेमाल कर ही नहीं पाओगे। उठाओ और इस्तेमाल करो, क्योंकि परमेश्वर ने संसार को जीत लिया है, अधिकार हमें दे दिया है। अब हमें अधिकार को इस्तेमाल करना है। हमारे पास है अधिकार, सब चीज़ का अधिकार है, इसलिए हमें अधिकार को इस्तेमाल करना है। इसलिए हमें परीक्षा है बोल के रो कर बैठना नहीं है। रोने के लिए परमेश्वर ने नहीं बोला है। रोना है तो क्या बोलते हैं, अपने बच्चे के लिए रो बोलते हैं ना, अपने लिए मत रो। रोने के लिए हम परमेश्वर नहीं चुना है। परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि हम जीते, हम विजय जीवन जिए, हारने के लिए नहीं चुना है। क्योंकि इसलिए हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीन में रख के, जो अधिकार परमेश्वर ने संसार को जीतने का दिया ना, अधिकार का इस्तेमाल करो और विजय जीवन जियो। तकलीफ परेशानी में आप हारो मत। तकलीफ परेशानी से आते रहता है, वो मतलब हवा का झोंका बोलते ना, हवा आते ही रहते ना, तो हवा का आते हुए कौन रोकता है, चलते रहता है। मैंने कल परसों तूफान आया था, कोई रुका? कोई नहीं रुका, वो चलते ही रहा। ऐसे ही मुसीबतें सब तकलीफ आते रहेगा, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर का वचन भी यही है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारे महिमा परमेश्वर को मिले।